Good afternoon, everyone. I am Dr. Naina. I am obstetrician and gynecologist from Amritsar. I am practicing at KMAX Hospital, Mall Road, Amritsar only. Today, we are here to discuss about myths and misconceptions about infertility and what you should actually know about it. So before we start, let us just introduce Sir. It's an honor for me to introduce Sir. He's being a moderator here with you. It's seriously a big honor for me, Sir. Sir is a renowned name in the field of infertility and needs no introduction though, but still I would like to briefly introduce Sir. He is BSM, PhD, and in clinical embryology. He is director at iHoma Fertility Clinics and ICAT Training Academy, Gurugram. Sir is presently President, Indian Fertility Society 2024 to 2026, Founder Secretary, Fertility Preservation Society of India. He is Dean, Department of Clinical Embryology and Reproductive Sciences, Sridhar University, Pilani. He has been awarded Vashisht Seva Medal by the President of India for working in the field of infertility. He has done excellent work in Fertility Training Award, received that in 2024. He has trained across 23,000 doctors globally for digital training across 34 countries. Let us just welcome Sir. Thank you, Naina. Thank you so much. Good to be back, and we are meeting every 2 weeks now. And today is our, I think, 21st Facebook Live we are having, and we cover small topics which you want to ask us. So, इससे पहले हम आज का दिन शुरू करें, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी भारी मात्रा में जुड़े हमारे साथ में. थैंक यू नैना फॉर बीइंग माय मॉडरेटर. और आज का सिंपल सा टॉपिक है जो कि अबाउट मिथ्स अबाउट इनफर्टिलिटी, विच इज ऑलवेज वेरी कंफ्यूजिंग. क्या करें क्या ना करें. और बहुत कॉमनली मेरे पास में जो लोग आके बोलते हैं कि हम ऐसा क्या खाना खाएं जिससे हमारा प्रेगनेंसी हो जाए, या फिर हम ऐसी क्या कुछ योगा करें, प्राणायाम करें, या फिर क्या करने से बेबी नहीं होता है, क्या सीढ़ी चढ़ना बंद कर दें, क्या हम we stop doing exercises. So a lot of myths are there. कुछ गलत धारणाएं हैं हमारे माइंड के अंदर और सबके माइंड के अंदर, आज उनके बारे में हम बात करेंगे. So over to you, Nana, and thanks for being with me. Thank you, sir. So let us just start with the questions we usually face in our OPD. Questions जो basic होंगे, myths and misconceptions of the patients about fertility. Those we are going to take up today, and sir will be telling about them and clearing all the doubts if you have any. First would be when the patient walks in. जब भी पेशेंट आता है, पहली चीज ये देखने को मिलती है, पेशेंट्स को लगता है, सभी को लगता है, फैमिली को लगता है कि फीमेल क्या ही रीजन है, फीमेल मस्ट हैव समथिंग, male is not the reason. So sir, the first misconception with the public is infertility is typically the women's fault. Can we have some light on this? What do you say? Thank you. This is a very difficult question with a very simple answer. तो नैना, अगर हम देखें कि how the fertility percentages are divided, I think it's 50-50. अगर आप मेरा देखेंगे तो मेरा OPD के अंदर I'll say around 60% are male infertility. But overall in the world, 50-50 is what we normally follow. Definitely yes, कुछ प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, परंतु आई थिंक ये जो डिजीज है, ये जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर 50% का जो कारण होता है वो मेल होता है. सो ये बहुत गलत धारणा है हमारे माइंड के अंदर है कि जब भी प्रॉब्लम हो वी कैच द फीमेल पार्टनर. दिस इज अ रॉन्ग धारणा. And I think we should look at both of them with a lot of compassion, with a lot of care. We should look at the only problem here, Nana, is that काफी हद तक इसके अंदर ये धारणाएं हम लोगों की जागृत की गई हैं. ये जो धारणा है ना कि मेल के अंदर प्रॉब्लम नहीं है और फीमेल में प्रॉब्लम है, ये धारणाएं हमारी लैक ऑफ एजुकेशन के कारण से है. तो बोलना चाहूंगा कि जो हमारे देश के जो मेल्स हैं वो भी उतना ही संवेदनाशील है जितना कि एक फीमेल पार्टनर होता है, परंतु हम उनको देखते ही नहीं.
My main worry is that I tell everyone that we should look at the male partner also. सबसे पहले तो हम अगर हम बीमारी के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि मेल उतना ही कारण है जितना कि एक फीमेल पार्टनर कारण होता है, उनसे हम बात करेंगे, आई थिंक द मेल्स विल कम फॉरवर्ड। अभी लैक ऑफ एजुकेशन, अभी ऐसा एक ऐसी धारणा बन चुकी है बहुत सालों से कि प्रॉब्लम होने पर प्रॉब्लम मेल के अंदर नहीं होती, फीमेल के अंदर ही होती। इस धारणा को बदलना है। एक बहुत बड़ा मिथ्य है जो आपने बात उठाया, ये बहुत बड़ा एक मिथ्य है, बहुत बड़ा मिथ है, जिसके कारण से हमारी बहनों को बहुत तकलीफ होती है। मैं आर्मी में था बहुत समय तक, अभी मैं प्राइवेट में काम करता हूँ, काफ़ी जगह पे काम किया। आई थिंक वी ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑन दी फीमेल पार्टनर, और जो हमारी फीमेल्स होती हैं उन्हें उन्हें हम बांझ कहते हैं। मैं कभी सोचता हूँ कि जिनका जहाँ प्रॉब्लम आदमी में है हम उन्हें क्या कहते हैं। बहुत कॉमन वर्ड है गांव में, कहते हैं बांझ है, इसका बच्चा नहीं होता है। उस लेडी को वी नेवर कॉल देम फॉर एनी बर्थडे पार्टी। घर में शादी होगी ननद की तो उसको बोलेंगे तुम मत आओ, घर में कोई इवेंट होगा तो बोलेंगे आप मत आओ, कोई सेरेमनी है तो मत आओ। सो वी आर एक्चुअली मेकिंग द वुमेन एज एज ए पर्सन हु ब्रिंग्स बैड लक एट मैनी स्मॉल स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स। जो मैं देखता हूँ जो लोग मुझसे बात करते हैं, आई थिंक वो भावना को हमने बंद करना है, खत्म करना है। एंड फॉर दिस वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक वी शुड ऑलवेज लुक एट दी मेल्स ऑल्सो। तो आपके आपके शहर में कैसा होता है नारायण, कैसे वो टू आस्क यू, आप पंजाब से हैं, पंजाब के Yes, अंदर जब प्रॉब्लम होती है तो क्या वहां पर भी ऐसा ही है क्या, जैसे मैंने बताया कि वहां पे कुछ अलग से देखा जाता है एक आदमी को? yes sir, यहाँ पे भी ऐसे ही देखने को मिलता है। When we have any patient, फीमेल पेशेंट को ये लगता है, आके कोई भी अटेंडेंट या फैमिली आके कहते हैं आप पहले फीमेल को ही चेक करवाओ, आप इसी के टेस्ट करवाओ। तो फिर उससे लगता है कि इनको शायद नहीं पता कि कारण मेल भी हो सकता है। लगता है। So it's our job as clinician to tell them that reason are both or any. In cases like 30 to 40% females are responsible, some factors are there in female. 30 to 40% male factors होंगे हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है जनरल पब्लिक को कि दोनों रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। आपके समझा पाती हैं अपने जो क्लाइंट पेशेंट्स आते हैं उन्हें, क्या समझा, आपकी बात सुनते हैं क्या वो लोग? मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज Yes, sir. जो हमारे फ्रेंड्स हैं, दर्शक हैं, और colleagues who are there are gynecologists, there are patients, तो उनके लिए क्या क्या मैसेज है आपका? जैसे मैंने अपनी भावना बताई कि जो मेरा क्लाइंटेल है वो भेदभाव नहीं करता है। प्रॉब्ली मैं गुड़गांव में काम करता हूँ तो इतना भेदभाव नहीं होता है वहाँ पे। Yes. आई थिंक फीमेल्स आर दे हैव एन अपर एज, एजुकेटेड होती हैं। सो बट Yes. अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर जब आपको ऐसा एक सिचुएशन मिलता है, उसे आप कैसे हैंडल करती हैं? सर अगर मैं बात करूं एजुकेटेड फैमिलीज की या जो सिटी पॉपुलेशन है, उनमें ये यूजुअली देखने को मिलता है, दे डू अंडरस्टैंड। इफ यू टेल देम द फैक्टर्स, दे डू अंडरस्टैंड कि क्या रीजन है, क्या बात कर रहे हैं। बट समटाइम्स आई थिंक लैक ऑफ एजुकेशन इज देयर, दिस फैक्टर इज देयर। जो पॉपुलेशन विलेज से आती हैं कई बार वो नहीं समझते हैं, वो कहेंगे नहीं जी हमने टेस्ट नहीं कराना है, हस्बैंड का टेस्ट नहीं कराना है। देन वी से कि देखो प्रेग्नेंट तो पेशेंट ने ही होना है, इंजेक्शन भी आप चाहते हैं उनको लगे, टेस्ट भी उनके हों, बच्चा भी वही कैरी करेगा, बट आपको टेस्ट कराना है, वो तो बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट वी पिक अप, दैट कि टेस्ट से ही पता चलेगा कि सब ठीक है कि नहीं। बट थैंक यू सो मच, वेरी वेल ब्रॉट आउट। सो आई थिंक जो मैसेज है वो ये है कि ये मिथ्य है। मेल पार्टनर उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी एक फीमेल पार्टनर होती हैं, और हमको दोनों को बहुत ही प्यार के साथ, कंपैशन और पैशन के साथ देखना है, उन दोनों की मदद करनी है हमको, और अपने आप को एजुकेट करना है। सो थैंक यू सो मच Yes. फॉर दिस क्वेश्चन। Yes, sir. Thank Now moving on to next question, sir. यूजुअली पेशेंट्स को नहीं पता होता कितनी देर तक आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं जब आप अपने डॉक्टर को मिले उससे पहले। सो कैन वी हैव दिस क्लियर? तो इसके अंदर नैना, जो हमारे कंट्री के जो कानून है, देखो हम अगर हम डॉक्टर हैं और हमें किसी का इलाज करना है तो वी हैव टू फॉलो सम गाइडलाइंस ऑफ द कंट्री। तो हमारे पास जो एआरटी एक्ट है, एक एक्ट क्या होता है, एक्ट एक नोटिफिकेशन है जो कि हमको बांधता है इलाज करने के लिए। वो हमें ये बताता है, जो इट इज कम फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साइंड बाय हिम फाइनली, कि एक दंपति जो कि मैरिड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात जाननी है कि हमारी कंट्री के अंदर अ, हम एक मैरिड कपल का ही इलाज कर सकते हैं। वो यस। मैरिड होना चाहिए।
सिंगल वुमन का भी इलाज कर सकते हैं, बट सिंगल मैन को हम इलाज ऑफर नहीं करते हैं। हम जिसके बारे में आप जानते हैं, सेम चीज वुड बी इन अमृतसर ऑल्सो। Yes, sir. ट्रांसजेंडर्स का भी इलाज हमारे देश के अंदर हम लोग एज पर द लॉ वी डोंट डू। सो नाउ कम्स द कपल। अब वो कहते हैं कि जब भी एक स्त्री और पुरुष की एज 21 साल से ऊपर है, सो ना इनिशियली इट वाज 21 एंड 18, नाउ इट इज Yes. 20 एंड 21। एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप लिया है हमारे भारत सरकार ने कि एक स्त्री की उम्र को भी उन्होंने 21 साल कर दी है। वेरी वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। सो तब तक Yes. लड़की परिपक्व हो जाती है, एडल्ट हो जाती है, और परिपक्वता सिर्फ एक बेबी प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होती है, एक मेंटल फ्रेम के लिए भी होती है, व्हेन शी कैन लुक आफ्टर द चाइल्ड। Yes, sir. 21 इज द एंट्री पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। उससे पहले हम किसी भी कपल को हम देख तो सकते हैं पर इलाज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है, कोई भी हमारे पास कोई दिखाने के लिए आता है, वी कांट से नो कि हम आपको देखेंगे नहीं, Yes, sir. परंतु इलाज ऑफर करने के लिए दे हैव टू बी 21 ईयर्स एंड मोर, बोथ ऑफ देम, नंबर 1। नंबर 2, उनकी शादी को 1 साल हो जाना चाहिए। और तब क्या क्या मतलब बना, अगर उनकी 21 साल की उम्र है एंड दे गेट मैरिड एट 21 years of age, they should be minimum 22 years of age. Getting my point? Yes, sir. So कानून के अनुसार उनकी उम्र 22 साल के करीब होनी चाहिए, 21 क्रॉस होना चाहिए। बट यस, अगर उनके सपोज व्हाट हैपेंस, अगर शादी हुआ और हम इन केस वी कम टू नो दैट द वुमन, दैट द मेल पार्टनर हैज गॉट इंपॉर्टेंस, आई एम जस्ट हैविंग ए सिचुएशन हियर ना, Yes. अगर आदमी को स्तंभन दोष है या उसको शीघ्र पतन होता है, which we call as premature ejaculation or erectile dysfunction, in that case they can come earlier also. I mean, तब क्यों वेट करेंगे वो लोग, तब वेट नहीं करेंगे ना। Yes. और अगर हमें पता चलता है कि लेडी के अंदर किसी कारण से पता चला कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मां नहीं बन सकती है, तब भी वो हमारे पास पहले आ सकते हैं। बट Yes. गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, बट एज ए रूटीन 21 years is the cut off age for marriage, and 1 year of married life they will come to us for Treatment. Yes. तो कहते हैं कि एज 35 साल का हो गया तो हम जल्दी, तो हम 6 महीने के बाद ही दिखा सकते हैं। 40 years का हो गया तो हम जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं, बट नहीं, एज पर आवर कानून ऑफ आवर कंट्री दे वेरी क्लियरली से 1 साल की मैरिज होनी चाहिए। 21 years के बाद कभी भी हो वो, तभी उनका हम इलाज कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं बट इलाज नहीं कर सकते। यस सर, यस सर। इसमें मैं कुछ बताना चाहूंगी सर। गाइडलाइंस तो हमारी यही है कि 1 ईयर तक आपको ट्राई करना है। जनरल पब्लिक को ये भी जानना चाहिए कि कई बार ये गाइडलाइंस एक्चुअल रूल नहीं है। कुछ केसेस में, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया, मोर देन 35 years ऑफ एज, या पेशेंट को वैसे इरेगुलर पीरियड्स हैं, या अल्ट्रासाउंड कभी करवाया हुआ है, या किसी फाइंडिंग में एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड आता है, या उसको कभी कंसीव हुआ है, उसमें मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या कभी ट्यूब में बच्चा ठहरा है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। फॉर सच केसेस दे कैन कम टू द क्लिनिशियन अर्लियर आल्सो, दे डोंट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर फॉर दिस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, वेरी राइट। पर ये आप there should be an indication to treat a patient less Yes. than 1 year of married life. There should be a solid indication. हम अपने आप से Yes. उनको देख सकते हैं पर उनका इलाज शुरू नहीं कर सकते हैं। Treatment नहीं कर सकते। Yes. Very right. I totally agree with you. Thank you so Thank much, you Nana. so much for telling this. Yes, sir. Thank you. Let's move on to next question. That is, women can't get pregnant after 35 years of age. Sir, is it true कि pregnancy हो ही नहीं सकती? ऐसा सिंपल जो जवाब है कि मैंने पहले भी बताया था कि जब एक स्त्री छोटा बच्चा होती है जो माँ के कोख में होती है, Yes, sir. तो छोटा सा बच्चा होता है जब वो कुछ हफ्ते का से 20 हफ्ते का, हमारी उम्र नॉर्मली रहती है 70 years 75 years, अभी मेरी ईयर 58 years है। Yes. तो अगर एक छोटा बच्चा माँ की कोख में होता है, उसकी उम्र 20 हफ्ते की होती है या 4-5 महीने की होती है, तब उनकी जो ओवरीज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना ओवरी में जहाँ डिम बनते हैं, जहाँ अंडे बनते हैं, अंडकोश, तो वहाँ पे तकरीबन 6 मिलियन एग होते हैं। और जब छोटी बच्ची का जन्म होता है, जब वो when she takes birth, that time the number of eggs become 2 to 3 million, तो वो आधा हो जाता है वो मात्रा। जब तक उस बच्ची मेच्योर होती है, से she starts having her periods 15-16 साल में, तो वो रह जाते हैं 2.5 लाख, एंड बाय द एज ऑफ 35 years they are barely 30,000।
तो Yes. अंडों की मात्रा उनके बदन में कम होती रहती है, एंड बाय द टाइम दे कम टू एज ऑफ 40 years शी हैज अराउंड 8,000 एग, 8,000 अंडे रह जाते हैं, डिम रह जाते हैं। अब जब देखिए कि कितना मैसिव फॉल हो रहा है उनके अंदर, कि एवरी ईयर 5 से 6%, 11% उनके एग का लॉस होता है। तो एट 35 हर फर्टिलिटी विल डेफिनेटली फॉल डाउन, उनके उनके बदन में अंडों की मात्रा कम होती है। एक विंडो पीरियड है हमारे पास 35 से 38 ईयर्स ऑफ एज, जिसके अंदर वो सेफ पीरियड माना जाता है, बट उसके बाद 38 के बाद और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। पर आपको एक बात बहुत ध्यान से सुननी है ना, समय के अनुसार हमें अपना काम करने का तरीका बदलना है, Yes, हमारे sir. इलाज के तरीके बदल रहे हैं, हमें अपना नजरिया बदलना है। अब हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो हमारी बहनें हैं, वो वो पहले लाइफ में सेटल होना चाहती हैं। अभी बहुत बड़ा सोशल डिस्प्यूट है ये, कि क्या Yes, sir. बच्चे की शादी हम जल्दी कर दें। अगर आप देखें कि कुछ समय पहले तक लड़कियों की शादियां लोग 21-22 साल में कर देते थे। अभी Yes. भी जब आप लोगों से बात करता हूँ, जब हम मिलते हैं, तो कहते हैं हाँ नहीं, गांव में तो अभी भी शादी हो जाती है, 18 साल पे हो जाती है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि गवर्नमेंट का तो रूल चेंज हो गया 21 साल का। कहते नहीं, अभी भी शादियां 21-22 साल पे हो जाती हैं, तो बच्चे भी हो जाते, न्याने हो जाते हैं 22 साल के होते। Yes, sir. Yes. बट ये हमारी कंट्री में ना बहुत बड़ा एक डिवाइड है ना। When I talk to all of my friends who come to me to learn and they learn from you, छोटे शहरों में अभी भी शादियां जल्दी होती हैं, पर Yes, बड़े sir. शहर जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो यहाँ पे एवरेज एज बन जाती है 36, 37, 38 ईयर्स, मे बी 40 ईयर्स इज माई एवरेज एज व्हेन दे कम टू मी। तो हमारा काम करने का तरीका, हमारा नजरिया समय के साथ बदलता रहता है। बट डेफिनेटली यस, 35 ईयर से पहले अगर एक लेडी के बच्चे हो जाते हैं तो वो बेटर है। 35 के बाद she comes into something like a Poseidon criteria 4, gradually she may go into that criteria। उनके बॉडी में डिम की मात्रा कम होती है, her egg count will become less, egg quality may become poorer, so she can have some problems, but I think not to worry। एक लेडी को, एक हमारी बहन को पूरा हक है, एक बच्चे को पूरा हक है कि अपना जीवन अपने आप चुने। अगर एक Yes. एक मैन गेट मैरिड एट 40, वी कांट से कि किसी बच्ची की शादी हम 21 साल में कर दें, 22 साल में कर दें, बिकॉज उसको भी अपना कैरियर देखना है, उसको ग्रो करना है। तो एक सोशल डिस्प्यूट है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, एक सोशल डिस्प्यूट है कि कब हमें लाइन ड्रॉ करें। बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो लाइन ड्रॉ करने की एज में बोलूंगा 30-32 साल। दिस इज व्हाट आई विल से, दैट नॉट ओनली गर्ल्स, द बॉयज शुड गेट मैरिड एट 30-32 ईयर्स एंड कंप्लीट देयर फैमिलीज। बट Yes, sir. ये गलत धारणा है बोलना कि 35 साल के बाद में एक 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 एक, एक स्त्री मां नहीं बन सकती। ये गलत Yes. धारणा है। आई थिंक आफ्टर 40 years आई विल से यस देयर इज ए प्रॉब्लम, बट तब उसको इलाज करने के तरीके कुछ बदल जाते हैं। Yes, sir. 35 and 38 is that cusp period where problems start increasing, and by between 30 and 40 it becomes bit more serious। और 40 साल के बाद yes, problems they are quite a many। that's the way I look at the age factor for all of you। Yes, sir. Thank you, sir, for this insight. सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, सभी का ये कंफ्यूजन होता है, मिथ ही कहूंगी इसको भी मैं, कि आजकल लेसर एज पे भी एग काउंट जो है वो फॉल हो रहा है। तो इज इट ट्रू? कई बार पेशेंट को हम बताते हैं तो वो समझते नहीं है, हम कौन सा ओल्ड हो गए हैं, हम कौन सा इतने बड़े हो गए हैं, वो नहीं समझते हैं। सो इज इट ट्रू, सर? इसका ना कोई भी कहीं पे लिखित तरीके में तो हमारे पास में नहीं। जैसे ना एक धारणा है बड़ी कॉमनली कि अगर हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जी फर्टिलिटी सर। सुना होगा ना आपने, लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप। अगर मैंने मेरे लैब के अंदर कंप्यूटर रखा तो कहते हैं लैपटॉप। जी। मोबाइल यस। फोन रखा तो मोबाइल टेलीफोनी, इसमें से रेडिएशन निकलती है। यस। आप देखें इस सबसे बड़ा, जैसे बोला ना पहले, सोशल फ्रीजिंग, कि बेटी की शादी कब करें, बहन की शादी कब करें, 30 साल या 40 साल, डिस्प्यूट है। उसी तरह से कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि लैपटॉप मोबाइल फोन यूज करने से डिम की मात्रा या स्पर्म्स की मात्रा कम होती है। वो कहते हैं प्रॉब्लम्स कैन बी देयर, बट ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन करने से स्पर्म की मात्रा कम, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है अभी इस तरह से, इतने यस स्ट्रॉन्ग वर्ड सर। डॉक्यूमेंटेड नहीं है। यस। इसी तरह से अभी नैना हो क्या रहा है डॉक्टर नैना, के हम बीमारियों को जल्दी पकड़ रहे हैं। पहले यस सर। बीमारियां पकड़ में नहीं आती थी। सो पहले हमारे पास, मेरी एवरेज एज ऑफ पेशेंट वॉज 32-33। मैं आर्मी में था तो बोलूंगा 28 साल, 26 साल। पूरी मेरी पूरा लाइफ
20 साल मैंने काम करा और बहुत काम करा. एवरेज एज वाज अराउंड 25-26. 30 साल भी नहीं आती थी हमारे पास. अभी मैं एवरेज 40, जब से मैं ग्रुप में काम करता हूँ, एवरेज इज 40. वी ट्रीट वुमेन बिटवीन 35 and 40 years of age. Yes, sir. हमारे पास टेस्ट नहीं होते थे, अल्ट्रासाउंड अच्छे नहीं होते थे. अभी हमारे पास AMH आ गया है हमारे पास, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ करने के लिए, बट एक टेस्ट है AMH का. हमारे पास एंट्रल फॉलिकुलर काउंट आ गया है, जो कि हम स्कैन Yes. करके देख सकते हैं. और नैना अभी तो ऐसी टेक्निक है हमारे पास कि हम एक प्रोब, TVS प्रोब लगाते हैं और हमें पूरा कलर के साथ हमें एक नक्शा मिल जाता है, कितने अंडे हैं, अंडों का साइज क्या Yes, है, sir. क्या नंबर है, उनकी हेल्थ कैसी है, फॉलिकल का ब्लड सप्लाई कैसा है. तो अभी जमाना बदल रहा है. तो हम Yes. क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास में आने से हम टेक्नोलॉजी का कई बार ओवर प्रयोग भी करते हैं. Yes, sir. इस कारण से हम जल्दी चीजें पकड़नी शुरू कर देते हैं. और एक और चीज, मैं कल ही एक बहुत अच्छी आपको छोटी सी एक वार्तालाप बताऊंगा. एक पेशेंट मेरे पास में आए एक छोटे से गांव से. वो गांव कोटपुतली राजस्थान के पास में है. Yes, sir. छोटा सा गांव है, उन्होंने मेरे को बोला छोटा सा शहर है. वो उस गांव से भी तकरीबन 10 किलोमीटर कहीं कहीं अंदर की तरफ रहते हैं, जयपुर की तरफ. Yes. सो वो अध्यापक है, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं. तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी बात बोली. कहते हैं सर, आजकल जो बच्चे जैसे ही घर जाते हैं, वो खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते और मोबाइल फोन खोल के बैठ जाते हैं. Yes. तो टीचर कहते हैं मोबाइल फोन पर ही रहते हैं बच्चे. कहते हैं उनको अच्छे से लिखना भी नहीं आता, पर मोबाइल फोन के अंदर हर एप्लीकेशन उनको यूज करनी आती है. और कहते हैं Yes. मोबाइल फोन, मैं कहता हूँ मोबाइल फोन दिए क्यों आपने? कहते हैं वो तो भारत सरकार ने दिलवा दिए कोविड के चक्कर में. कितना अच्छा हुआ ना. लेकिन अब डेनमार्क देखिए, अब डेनमार्क के अंदर सबके पास टैबलेट है, सबके पास मोबाइल फोन्स है. यूएस देख लीजिए, अभी सारे के सारे देश वापस जा रहे हैं किताबों की तरफ. वो मोबाइल फोन टैबलेट्स अभी धीरे धीरे बंद करने के चक्कर में. तो इंडिया के अंदर देखिए ना क्या अच्छा हुआ. जब कोविड आया तो भारत सरकार ने सबको इनकरेज करा, हर तरफ जूम प्लेटफॉर्म्स आए और सबके Yes. बच्चे की नॉलेज बढ़ी. बट नॉलेज बढ़ने के साथ में एक और भी प्रॉब्लम आई कि Yes. डॉक्टर आ गए, गूगल यूनिवर्सिटी आ गई. सो आजकल Yes. हर लड़की, हर लड़का जानना चाह रहा है कि उनकी फर्टिलिटी प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं. तो बड़े बड़े टेस्ट करते रहते हैं. कोई FSH करेगा, कोई AMH करेगा, कोई स्कैन Yes. करा लेगा, सीमेंट टेस्ट करेगा. तो चीजें जल्दी पकड़ में आनी शुरू हो गई हैं, जो कि एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, एक अच्छी बात है. सो ये कहना कि आज के जमाने के अंदर एग काउंट कम हो रहा है, यस आई फील कम हो रहा है. स्पर्म काउंट कम हो रहा है, यस कम हो रहा है. परंतु मैं बोलूंगा कि ऐसा कहीं ऐसी एक धारणा भी हो सकती है. आई थिंक एक अक्रॉस द टेबल हम लोगों को जल्दी देख रहे हैं, जल्दी पकड़ रहे हैं. दैट्स द रीजन ऑफ दैट. सो आई वोंट से कि अंडों की मात्रा कम होनी शुरू हो गई है. और शायद फर्क तो पड़ता है क्योंकि लेडीज nowadays they come, they get married at 35-40 years of age. नंबर 1. नंबर 2, बहुत पोल्यूशन है. Yes, sir. Environmental damage is what I feel is one of the factors for this. चीज है. हमारे पास वातावरण है, दूषित है. इन चीजों में Yes. फर्क तो पड़ता है. पर Yes. इसके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारे, कई बार मैं आपको लोगों को बताता हूँ, जो हमारे बॉडी में जो जीन्स होती हैं, दे बिकम वीकर. सो वी आर गेटिंग टीलोमेयर डैमेज. क्रोमोसोम्स हमारे शॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं, शुरू हो चुके हैं हमारे. सो वो Yes. आई थिंक इट्स नॉट ओनली द प्रदूषण और एटमॉस्फेयर, इक्यू इंडेक्स. इट्स ड्यू टू हम भाग रहे हैं. हम सब इतनी तेजी के साथ भाग रहे हैं कि भागने के अंदर हम अपने बदन को यानी कि प्रेशर कुकर हम चला रहे हैं. दैट कैन बी द रीजन. जबकि हमारी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी धीरे धीरे कम हो रही है. Yes. डेफिनेटली, बट दैट इज अप टू अस. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो भी है हमारी अपनी क्रिएशन है. अगर हम अच्छा भोजन लेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं, मैं किसी का बुरा मत करो, Yes, sir. तो हमारा मन शांत रहेगा. सो Yes. आई थिंक दिस इज ऑल रिवर्सिबल थिंग्स. ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा मीटर ऑन हो गया कि सबके स्पर्म काउंट और एग काउंट कम हो रहे हैं. इस बात के बारे में Yes. नहीं कर. सो ये Yes. हमारे पे डिपेंड करता है, हमारा जीवन शैली कैसे बदलते हैं. तो सवाल आता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का. बेसिकली Yes. लाइफस्टाइल. Yes, sir. आजकल ना मोर पीपल डाई ऑफ ओवरवेट देन अंडरवेट. Then underweight. Yes, sir. True, sir. प्रॉब्लम इज ओबेसिटी. प्रॉब्लम इज नॉट अंडर न्यूट्रिशन. Yes, sir. हमारी भारत सरकार ने इतना किया देश के लिए, तो सबके पास अभी काफी हद तक खाने को मिलता है, मिड डे मील्स होती हैं. तो प्रॉब्लम इज प्रॉब्ली ओवर ईटिंग एंड Yes. लाइफ diseases then under malnutrition, and they can all lead to poor egg reserve, poor egg quality and less sperm count.
So we have to correct ourselves. Right, sir. Right, sir. Thank you for giving us clear message about this. Plus, telling our viewers that lifestyle modification is the key for few of the factors which are related to fertility. So please change the lifestyle. Don't be sedentary. Start some activity and change the food you are eating. You can have few changes accordingly. So moving on to next question, very easy. Some of the patients do have this. If we prescribe birth control pill to any of the patients, then they say this reduces the fertility and that can cause infertility. So is it true? नो नो, देखो बर्थ कंट्रोल पिल तो एक बून है, एक ऐसी जादू की दवाई है जो बनाई गई है Yes, अपने sir. अपने बॉडी को फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए। Yes, sir. यहाँ पर मैं एमटीपी पिल की बात नहीं करूंगा। Yes, बर्थ sir. No, birth control pill. कंट्रोल कहते हैं पिल 72 एमटी पिल, एक तरह का ये फैशन बन गया है। कुछ भी कांटेक्ट होता है पीपल टेक, एम आई राइट? अमृतसर में कैसा होता है मेरे को नहीं पता, बट यहाँ तो Yes, बहुत sir. होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ओवर द काउंटर मिलने लग गई हैं अब। हाँ, तो ये दवाइयाँ इनके लिए मैं फेवर में नहीं हूँ, वो भी बर्थ कंट्रोल पिल ही होती है जो कि Yes, अनवांटेड संभोग के बाद जो कपल्स लड़कियां और लोग लेते हैं, तो उनको अगर अलग कर दिया जाए बर्थ yes, sir. कंट्रोल पिल, वो भी अच्छा है सबके लिए अगर मेडिकली यूज किया जाए ठीक से। तो बट बर्थ Yes, कंट्रोल इज ए मैजिक पिल। yes, बर्थ कंट्रोल पिल हमको, वो एक स्त्री को ताकत देती है, वो एक स्त्री को सक्षम करती है अपनी लाइफ कंट्रोल करने के लिए। सो आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी गुड थिंग फॉर एवरी वुमन। उनको पढ़ाना चाहिए बर्थ कंट्रोल के बारे में। एवरी मैन शुड नो अबाउट बर्थ कंट्रोल। सो पिल्स आर नॉट बैड एट ऑल। हमको सिर्फ एक सिंपल मैसेज देना है कि बर्थ कंट्रोल पिल इन केस टेकन प्रॉपरली दैट डजंट कॉज एनी प्रॉब्लम। दिस विल yes, ओनली दैट शी डजंट बिकम, उनको they don't become pregnant, so they're in fact saving their fertility. yes, They sir. won't, के जो एग होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं। पर यस, Yes, बर्थ कंट्रोल पिल जब हम उनका कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सपोज उनका हम आईयूआई करना चाहते हैं, आईवीएफ करना चाहते हैं, दैट टाइम बर्थ कंट्रोल पिल इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज दैट कैन लीड टू, ये दवाइयाँ खा के आईवीएफ करने में रिजल्ट में फर्क आ सकता है। परंतु एक सिर्फ बर्थ कंट्रोल पिल एक अच्छी दवाई है। ये पीरियड्स को रेगुलर करती है, ये yes, एक sir. चाहे गर्भ धारणा से बचाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, रेगुलराइजेशन ऑफ द पीरियड्स, समटाइम्स पीरियड्स गेट डिलेड, दे कैन बी रेगुलेटेड। किन्हीं को पीसीओडी है, इट विल हेल्प देम। किन्हीं का एग रिजर्व कम है तो उनको शॉर्ट पीरियड्स होते हैं, पीसीओडी में लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, उनको रेगुलराइज करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है और इसे खूब इस्तेमाल कीजिए। हाँ, Yes, डेफिनेटली जब तक आप इस दवाई को ले रहे हैं तब तक आप गर्भ धारण नहीं कर सकते, बट इस दवाई लेने से हमारी गर्भ धारण करने की क्षमता कम नहीं होती। ठीक है। थैंक यू सर फॉर दिस। यस सर। अभी सर ये अभी वी जस्ट टॉक अबाउट के मेल फैक्टर इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर फर्टिलिटी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पेशेंट आता है, हस्बैंड से जब हिस्ट्री ली जाती है, जैसे कि मुझे इजैकुलेशन होता है, नॉर्मल होता है, तो मेल में क्या प्रॉब्लम होगी, मेरे टेस्ट क्यों कराने हैं? तो इज इट लाइक कि अगर मेल इजैकुलेट करता है तो इनफर्टाइल नहीं हो सकता? बहुत ये सवाल किसी ने पूछा आपसे? यस सर। ये सवाल निकाला है आपने। सो जो मेल का जो फिजियोलॉजी है ना, बहुत ही अजीबोगरीब है ना। मेल के अंदर हम जो पार्ट देखते हैं उनकी फिजियोलॉजी के, फर्स्ट ऑफ ऑल अराउजल, द मैन हैज टू गेट अराउज्ड। दूसरा ही टू गेट इरेक्शन, इसे कहते हैं स्तंभन। एंड देन दे हैव टू हैव penetration, then they have to have orgasm, and then they have to have ejaculation. Yes. पतंग। तो 5 भाग हो गए इसके। अगर ये पांचों भाग ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इंसान के अगर इरेक्शन ठीक से हो रहे हैं, अराउजल हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका दिमाग, उनका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, दिमाग है, जो पिट्यूटरी है, जो टेस्टिस है, और जो ब्लड सप्लाई है हमारे ऑर्गन्स की, वो ठीक से काम कर रही है। Yes, वो ठीक से काम कर रही है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। और यही आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर ही मेल को चोट पहुंच रही है। जो अपने थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना हमने, स्ट्रेस की, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की, एज की। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ unhappiness in the married couples. So around 60% of the men who come to me, they have this problem.
60% में प्रॉब्लम होती है जो लोग मेरे पास में आते हैं। सो जो आपका आपका जो सवाल था कि अगर ये पांचों चीजें ठीक है, कैन ही बी इनफर्टाइल? इनफर्टिलिटी होती है कि अगर उनका गर्भ धारण ना हो सके। ये दिस इज द पार्ट ऑफ द फर्टिलिटी वेयर ही इज ए सेक्सुअल एक्ट। दिस इज ए सेक्सुअल एक्ट, एक संभोग क्रिया है। बट अगर हम देखें बच्चा होने की क्रिया, उसके लिए जो व्हेन द मैन विल एजैकुलेट, उसमें उनको शुक्राणु होने चाहिए और शुक्राणु भी जीवित होने चाहिए और एक अच्छी मात्रा में होने चाहिए, जो कि WHO ने डिफाइन कर रखी। तो शुक्राणु बनना, शुक्राणु एक अच्छी मात्रा में बनना और शुक्राणु की हेल्थ अच्छी होना, मोर्फोलॉजी अच्छी होना और शुक्राणु का बाहर आना। कई बार क्या रहेगा नैना कि शुक्राणु बनते तो हैं और कपल आपस में कॉन्टेक्ट भी रखते हैं, परंतु शुक्राणु बाहर नहीं आते, पर वो ब्लैडर में चले जाते हैं, वो शरीर में चले जाते हैं। हाँ, उसे रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन कहते हैं हम लोग। सो ये आपका जो सवाल है ना, इसका मैंने उसमें एक और चीज जोड़ी कि शुक्राणु बनने की जो क्षमता होती है, क्वालिटी, और उनको एंटीग्रेड, उनको उनके जब जब उनको ऑर्गेज्म होता है और जब एजैकुलेट करते हैं तो स्पर्म्स को बाहर आना, इसके पीछे पूरा पैसेज होता है जिसके थ्रू शुक्राणु बाहर आते हैं। तो देयर कैन बी मैन हु डजंट मेक एनी स्पर्म्स एट ऑल, क्योंकि टेस्टिस फेल कर रही हैं, पर तब भी वो लोग नॉर्मल संभोग रख सकते हैं। दे कैन हैव नॉर्मल इंटरकोर्स आल्सो। इट इज कॉल्ड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंडोस्पर्मिया अर्ली ऑनसेट, और देयर कैन बी एन ऑब्स्ट्रक्टिव एंडोस्पर्मिया और वेरी पुअर स्पर्म काउंट। सो ये दोनों अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग चीजें हैं। और जिन दंपतियों को बच्चा नहीं होता है, even if they are having good sexual intercourse 2 to 3 times a week, unprotected as per the law, as per they are having regular intercourse, तब भी उनके अंदर शुक्राणु की मात्रा कम हो सकती है। और अगर आप देखें 100 में से एक आदमी को एंडोस्पर्मिया है, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में देखें अगर हम तो, और हमारी ओपीडी में से 10 में से 2 लोगों को एंडोस्पर्मिया हो सकता है, मतलब कि उनके अंदर शुक्राणु नहीं बनते हैं, परंतु वो लोग ठीक से संभोग कर पाते हैं, उनमें सेक्सुअलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उनके अंदर स्पर्म नहीं बनते हैं, या स्पर्म बनते हैं बाहर नहीं आते हैं। सो आई थिंक सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही सेंसिटिव सवाल है, और हमें लोगों को बताना है ये 2 अलग प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग प्रणाली है, और उनको अलग से हैंडल करना चाहिए हमको। एवरी मैन आफ्टर 1 year of marriage they need sperm evaluation. We should do their semen analysis, and we should also carry out most important here is sperm number quality by doing sperm morphology. Yes, morphology and motility. Yes. ये हम सभी व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि सिर्फ स्पर्म काउंट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सभी को लगता है कि स्पर्म्स ठीक है, नंबर्स ठीक है, तो दैट वुड बी फाइन, बट मॉर्फोलॉजी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, किस तरीके का दिखता है स्पर्म, और मोटिलिटी कितना, कैसे चल रहा है, कैसे जा रहा है, मोटिलिटी क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। we do get to see patient कहता है irregular periods हैं, irregular menstrual cycles is always infertility. sometimes patient says कि irregular है, हमें तो होगी ही नहीं pregnancy. देखो, लाइफ है ना, लाइफ एक कंप्यूटर नहीं है ना। यस सर। मैं जैसे कई बार आपको दिखाता हूँ ना, ये दिस इज एन आर ग्लास, ये आर ग्लास है, तो ये 5 मिनट का है। यस, 5 मिनट का आर ग्लास है, 5 मिनट के बाद पूरा रेत नीचे आ जाएगा। सो ब्यूटीफुली डिजाइन। हमारी घड़ी के अंदर हम अलार्म लगा देते हैं तो उसी टाइम घंटी बज पड़ती है सुबह शाम। एक फीमेल के जो पीरियड्स होते हैं ना, वो इसके जैसे नहीं है कि हर 28 दिन के बाद पीरियड्स आ जाएंगे। दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द माइंड, कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रेस, एंड अ वुमन इज प्रोग्राम्ड that she will have an average periods of 28 to 32 days interval. So हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी अगर स्थिति में पीरियड्स लेट आते हैं 4-5 दिन या जल्दी आते हैं, हम इसमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नंबर 1। सो डोंट मेक दैट, डजंट मेक हर फर्टाइल। परंतु
डॉक्टर नैना, हमको जब हम देखते हैं यंग गर्ल्स को, बॉयज को, एंड कम टू अस, अगर किसी भी बहन के पीरियड छोटे हो रहे हैं, इनके शी इज गेटिंग शॉर्टर पीरियड्स, दिस मीन्स दैट देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद हर Yes. रिजर्व। अगर उनके अंदर जो एग की मात्रा बदन में कम हो रही है तो उनके पीरियड छोटे होने शुरू हो जाते हैं। सो हमको Yes. हमको हमको उनको लेबल नहीं करना है कि तुम इनफर्टाइल हो। अगर आप उनके अंदर बॉडी में अंडों की मात्रा कम है तभी इनफर्टाइल नहीं है ना, वो Yes. इनफर्टाइल नहीं है, बट हमें जल्दी रिएक्ट करना होता है। और कुछ गर्ल्स के पीरियड लेट आते हैं, दैट कैन बी पीसीओडी, दैट कैन बी Yes, sir. पीसीओडी। तो हमको उनको ट्रीट करना है, वो इनफर्टाइल नहीं है, देयर कैन बी poor ovarian reserve or PCOD, so we have to treat them so that periods they become regular। परंतु कई बार हमको उनको उन्हीं पीरियड के साथ ही ट्रीट करना होता है। Yes, सो sir. वी हैव टू फॉलो देयर पीरियड्स एंड देन ट्रीट देम। बट पीरियड छोटा होना, बड़ा होना, ये नहीं कहता कि वो इनफर्टाइल है, उनको बांझपन है। वो ये कहता है कि कुछ छोटे छोटे कारण है। अगर डिम की मात्रा कम है तो शॉर्ट साइकिल्स होंगे, डिम की मात्रा बढ़ गई तो लॉन्ग साइकिल्स होंगे। तो हमको उनको सिर्फ ट्रीट करना है। अगर आप एक Yes. परिभाषा देखो, तो परिभाषा देखेंगे तो देयर ऑल आर ओवुलेशन डिसऑर्डर्स। अगर वो टाइम पे ओवुलेट नहीं करती है लड़की और उसके डिम समय पे नहीं बनते हैं तो शी विल बी हैविंग इनफर्टिलिटी। बट देन इन केस वी आर एबल टू, अगर हम उसके साइकिल को ठीक से मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि भैया ये तो दिस गर्ल इज ओवुलेटिंग ऑन डे 8 और ये ओवुलेट कर रही है 20th डे पे, और तब अगर आपस में संभोग रखते हैं, शी विल बिकम प्रेग्नेंट। Yes, sir. सो from here, Dr. Nana, is not about her being infertile, but problem about her having irregular Circular ovulation। cycle. तो Ovulation. अगर हम डे ऑफ ओवुलेशन को पकड़ लेंगे, जब उनके डिम बदन से बन के बाहर आते हैं, अगर वो दिन को हम स्पेसिफाई कर लेंगे, शी विल बिकम प्रेग्नेंट। तो Yes, उनको sir. ये कहना एक गलत धारणा है। यस सर। तो साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी सर, ऐड करना चाहूंगी कुछ, कि अगर पीरियड इरेगुलर आते हैं तो ट्रैकिंग डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे आपने अभी बताया, ओवुलेशन ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन पेशेंट्स को ये भी समझाना जरूरी है कि कैलेंडर मेथड कैन बी यूज या कुछ भी यूज, ये मिथ हटाना बहुत जरूरी है कि इससे ये नहीं कंसीव नहीं होगा, यू ट्रैक योर ओवुलेशन एंड यू कैन गेट प्रेग्नेंट। यस। कोई प्लस आईओआई नहीं करना, ना ना, कोई आईओआई नहीं करना, नो कोई नो आईवीएफ सर। नहीं, उनको सिर्फ साथ में लेकर आना। Yes, sir. Yes. Timed intercourse, what we always बस talk about. Best. बस Yes, sir. We always वेरी teach all of our viewers here listening to us. Timed intercourse का मतलब है आपने alternate 2 to 3 days, every 2 to 3 days intercourse करना है throughout cycle or during your fertile time like 8 to 18 depending on अगर regular cycles हैं या नहीं है। तो उस पे tracking your ovulation is very important and doing timed intercourse will help you. Now moving on to next question, sir. Infertility can't happen in young women and men. नो। Some patients say, आजकल yes, तो आजकल तो बोलूंगा कि ये चीजें बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं। द रीजन yes, बीइंग किसी के पास इतना स्ट्रेस है ना नैना आजकल। स्ट्रेस इंडेक्स एक तरफ तो कहते हैं पोल्यूशन इंडेक्स। yes, sir. मैंने नहीं पता चला तेरा की हाल है अंबरसर दा, हम अमृतसर, आई डोंट नो, Yes, बट गुड़गांव में रह के तो आप सांस भी ले नहीं पाते, yes, दो sir. I know. एकदम सांस ही ले नहीं पाते हैं यहाँ पर। एंड देन एवरीथिंग इज अफेक्टिंग आवर स्पर्म्स, दे अफेक्ट आवर लंग्स, दे अफेक्ट आवर ओवरीज। बॉडी में तो जहर जाएगा तो जहर कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा ही ना। और Yes, हमारी बॉडी में सबसे संवेदनशील चीजें क्या होती हैं? स्पर्म्स एंड एग्स। एक्चुअली yes, दे आर ना, दे आर मल्टीप्लाइंग एवरी डे, ग्रोइंग एवरी डे। तो जब बाहर का जो मीथेन गैसेस हैं, देर आर कार्बन डाइऑक्साइड गोइंग हाई, कार्बन मोनोऑक्साइड कमिंग, दे विल ऑल लीड टू पुअर क्वालिटी एग्स एंड स्पर्म्स। ये नॉन चीज है, ये बिल्कुल नॉन चीज है। उसके yes, बाद आ गई परेशानी। इतनी परेशानी है कि सब लोग, पूरे दुनिया का बोझ, एक ना कहानी थी एटलस की, उसको पूरे संसार को अपने सर पे लेके खड़ा होना था। वो अभी भी खड़े हैं, एटलस भगवान खड़े हुए हैं, वो ग्रीक गॉड है। तो हम yes, सब छोटे छोटे बच्चे भी ना पूरी दुनिया को सर पे उठा लेते हैं। एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। एक छोटी सी बच्ची की, एक गर्ल हु पासेस आउट, सबसे पहले क्या होता था कि एक थोड़ा सा डिग्री कर लिया, डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, 22-23 साल में, 24 साल में काम खत्म हो गया, अब शादी कर लेते। अभी तो बोलेगी नहीं, लड़का बोलेगा नहीं, पहले तो पापा मुझे अपना एक कार खरीदनी, कल तो कार खरीदेंगे ये लोग। मेरे भी बच्चे हैं, इट्स नॉट, आई एम गोइंग टू सेम थिंग, पहले वो कार खरीदेंगे,
उसके बाद उनको एक अपना घर चाहिए। पहले क्या हो रहा था कि दंपति जुड़ते थे आपस में शादी के बाद, कुछ पैसा दिया पेरेंट्स ने, कहीं छोटा सा हनीमून करके आ गए, उसके बाद एक घर, समय के साथ माता पिता के साथ में रहना शुरू कर दिया करते थे, सो देयर वाज नो Yes. प्रॉब्लम। अभी सबको अपनी अपनी जगह चाहिए, सबको अपनी जमीन चाहिए। तो जो लड़की बोलेगी कि मेरा अपना घर क्यों नहीं, मुझे अपना घर चाहिए, एंड व्हाई नॉट, वो ठीक Yes. सोच रही है, गलती सोच Yes. रही है वो। तो वो एक वो ये लोन उठाया, वो लोन उठाया, फिर पढ़ाई कर रहे हैं। और ना आजकल तो ये हाल है मेरे पेशेंट्स का, मैं तो बताऊं, बट आई मीन गुरुग्राम कि लड़की काम करती है सिंगापुर जोन के अंदर, लड़का Yes. काम करता है यूरोपियन जोन के अंदर या अमेरिकन जोन के अंदर, और माता पिता रहते हैं इंडियन जोन के अंदर, के साथ में रहते हैं, तो मेड रहती है Yes. इंडियन के अंदर, डॉग पेट रहता है सबके पास में, आजकल वो इंडियन जोन में रहता है। सो एक घर में 3-4 जोन में लोग रह रहे होते हैं, Yes. उन्हें आपस में कब मिलते हैं, कब बात करते हैं, पता ही नहीं उनको। Yes. खाली रात को 3-3:30 बजे जो रात की जब कॉल खत्म होगी उनकी 3:30 बजे, तब वो खाली होते हैं। True, sir. सो ये लाइफ है इन सब की। तो ये सब अपने सर पे हम इतना वेट लेके चल रहे हैं, इतना बोझा लेके चल रहे हैं। इस बोझा लेने के साथ में हमारे जो ब्रेन के जो ग्लैंड्स हैं अफेक्ट होते हैं, और Yes, फर्टिलिटी sir. गिरती है, फर्टिलिटी Yes. गिरती है। एंड तभी कह रहा हूँ कि अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा शांत रखें, और कुछ ज़्यादा समय अपने साथ में बिताएं। बट Yes. this is a problem everywhere this is a problem, that stress and pollution is leading to low fertility। अब लो फर्टिलिटी नहीं है, ये नहीं बोलूंगा कि उनके अंडे बनने खत्म हो गए, शुक्राणु बनने खत्म हो गए, बट दे इससे वो आपस में रह नहीं, साथ में नहीं रह पा रहे हैं आजकल कपल्स, Right, sir. Right. संबंध बना ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज बहुत काम करना है उनको बहुत काम करना है, उनको बहुत पढ़ाई करनी है, अपने आप को सक्षम करना है, उस चक्कर में फर्टिलिटी पोटेंशियल, अब देखिए ना हमारे देश के अंदर फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, और हमारे देश में नहीं, लोग चाइना वॉज ए वेरी फर्टाइल कंट्री टिल सम टाइम बैक। जापान के अंदर Yes. फर्टिलिटी गिर चुका है, चाइना में फर्टिलिटी रेट गिर चुका है, वहाँ पे Yes. यंग लोग ही नहीं, यंग बच्चे ही नहीं है वहाँ पे। सो ये कारण सिर्फ ये कारण हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है, दिस इज आवर Yes, ओन। sir. Right. अभी देख लो, सबको एक ही बच्चा चाहिए, दे ऑल वांट टू हैव ओनली वन चाइल्ड, एक को तो पालना है। Yes. 5-6 4 बच्चे भी पल जाया करते थे, मेरे एक ही बच्चा हो जाए उसी को पालना। Yes, sir. Right. सो हमको ब्लेम अपने आप को करना है, हमको उनको बताना है कि कुछ भगवान ने नहीं करा हमारे साथ में, ऐसे नहीं Yes, sir. भगवान ने तुम इनफर्टाइल हो जाओ, इट इज आवर ओन क्रिएशन। सो वी हैव Yes, टू sir. लव आवर, लव आवरसेल्फ, सब ठीक हो जाएगा। Yes, sir. Sorry, that is what we usually add to our patients or viewer also, to know that patient walk in, we get the patient walk in and they say ਤੁਹਾਨੂੰ pregnancy नहीं हो रही। अच्छा, मैं कि कितनी देर हो गई ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? That's the first question we ask, sir. Then they would say 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। अच्छा, मैं क्या 5 साल हो गए pregnancy नहीं हो रही? They would say नहीं जी। मैं क्या ਤੁਸੀਂ try ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ। Okay, then that's the thing, because they're not trying for so longer time. टाइम ही नहीं है उन को। Yes, sir. आईवीएफ Yes. एक नया धारणा में Yes. आईवीएफ कर दो, Yes, sir. आईवीएफ कर दो, बस कहाँ से पढ़कर आते हैं डॉक्टर, गूगल से आते आईवीएफ कर दो। समय नहीं है हमारे पास, हर सबको मैगी चाहिए, फटाफट से सबको बेबी चाहिए। Maybe information from the Google is maybe the cause for this, sir. They would say IVF कर दो, 1 महीने जी हो जाएगा, जल्दी जाएगा बस। Yes, sir. So next question would be, certain sex positions may improve the odds of pregnancy. Is it true, sir? आई थिंक जब हम बहुत पढ़ लिख जाते हैं ना, तो बहुत पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो Yes, sir. जहाँ तक मेरा विचार है कि जो पोजीशन जो बात करते हैं, बहुत पेशेंट पूछते हैं कि ऐसा करने पे बेटा होता है, ऐसा करने पे बेटी हो, ये भी लोग बात करते हैं। Yes, कुछ sir. लोग कि पंचांग के अनुसार जब मून ऐसा हो, जब हाई टाइड हो, लो टाइड हो, आई थिंक ये सब धारणाएं ठीक नहीं है। Yes, sir. कुछ लोग कहते हैं कि कितने समय तक हमको लेटना चाहिए आफ्टर दे हैव Yes, it was. Yes, sir. ये धारणा ठीक नहीं है। आई थिंक हम लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जो चीज Yes. जरूरी है वो करते नहीं, अपने मन को शांत करेंगे नहीं, एक अच्छा जीवन शैली जिएंगे नहीं। हाफ ऑफ अस आर डायबिटिक, हाफ ऑफ अस आर डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव, उसको करेक्ट नहीं करेंगे। वी टॉक Yes. अबाउट मोर कॉम्प्लेक्स थिंग व्हिच हैज गॉट, सो आई डोंट थिंक
that makes much of difference. But आपस में अगर प्यार रहे तो that is the only thing which we need. यस सर, ये भी हम बताना चाहेंगे, आप भी बहुत बार ये चीज बताते हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं आफ्टर इजैकुलेशन इन 2 to 3 minutes they reach the tubes for fertilization. So no position is going to differ that thing. If the sperms are normal, motility is normal and morphology is normal. So for our viewers to know, ये जो पोजीशंस की बात करते हैं वो मैटर नहीं करती हैं, कोई पिलो रखने की जरूरत नहीं होती है बिलो हिप्स, यू कैन कंटिन्यू लाइक दैट ओनली. So next question would be, sir, it is like patients को लगता है कि अभी इतनी एडवांसमेंट हो गई है, कई बार पेशेंट आता है बड़ा कुछ हो गया, सारे रिपोर्टेड ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो सबको लगता है कि infertility is always fixable. You go to a good clinician, it is always fixable. They will go from one clinician to another, 10, 15, they'll take the bundle of prescriptions कि सारिਆਂ ਨੂੰ दिखा लिया, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. They keep on moving from one clinician to another without trusting one, thinking that it is always fixable. So what do you have to say for this? I think इसका जिम्मेदार आप और मैं, ये इसकी जिम्मेदारी आप पे और मेरे पे आती है. Yes sir. हम लोग इतना डरते हैं कि we lose a patient that we start over treating them. हर पेशेंट मुझे आके बोलते हैं मेरा आईवीएफ कर दो, मुझे आईवीएफ के लिए रिकमेंड किया, ऐसे टाइम इंटरकोर्स से आपका केस होगा, तब के हो भी जाते हैं बच्चे. Yes sir. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि हमको उनको एजुकेट करना है, हमको ठीक इलाज करना है, हमें ठीक इलाज करना है, एजुकेट करना है. एंड आई थिंक अगर हम सब एक ही बात सोचेंगे तो तभी ठीक से काम हो पाएगा. अगर मैंने मना करा और किसी और ने उनका केस कर दिया तो फिर वो then they lose faith on each other. And secondly, I always say कि हमको ओवर इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, हमको बहुत टेस्ट नहीं करने होते हैं. हम क्यों एक पैकेज बना के देते हैं 20,000 का, 22,000 का, 25,000 का? वाई? इट्स नॉट नीडेड. हमें तकरीबन आई थिंक 3-4 हज़ार के अंदर 5,000 में सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं. यस सर, बेसिक. दैट टू इन बोथ द पार्टनर्स. आई पर्सनली फील के 6-7 हज़ार के अंदर पूरा दोनों पार्टनर्स का वर्कअप हो जाना चाहिए. हमको अपनी क्लिनिकल सेंस ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस. एंड आपने बोला कि हर केस फिक्सिबल है कि नहीं, सबका बच्चा हो सकता है कि नहीं, तो बोलूँगा कि इंसान चांद पे जा चुका है. और अभी 1962 के अंदर जॉन एफ कैनेडी जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने अनाउंस करा था कि हम चांद पे जा रहे हैं. और कल हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं यूएस के, कल उन्होंने अनाउंस करा हम मार्स पे जा रहे हैं. yes, 1961 में जब उन्होंने कहा था कि हम 61 में जब मार्स पे जाएंगे, मून पे जाएंगे, तो वो 8 साल में मून पे चले गए थे. सो आई थिंक अगर उन्होंने बोला है तो अभी टेक्नोलॉजी इज बेटर. आई थिंक 4-5 years विल बी इन विद एलॉन मस्क, हम मार्स पे रहेंगे, मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे हम लोग. सो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प एवरीवन नाउ, नॉट एवरीवन, टेक्नोलॉजी कैन हेल्प मेजॉरिटी ऑफ पीपल. सिर्फ एक काम करने का तरीका थोड़ा अपग्रेड होता रहता है, बट नियरली एवरीवन कैन टेक हेल्प. बट यस, जिनके अंदर यूट्रस है ही नहीं, है, उन्हें सरोगेसी की जरूरत पड़ेगी. जिनमें डिम बनते ही नहीं है उनको फिर एग डोनेशन की जरूरत पड़ेगी. जिनके स्पर्म्स नहीं बनते दे नीड स्पर्म डोनेशन. जिनके दोनों नहीं है दे नीड एम्ब्रियो डोनेशन. सो आई थिंक केस वी हैव टू गो फॉर ए donor at this point of time. So I think everyone can become a parent, but एक modality हमारी बदलती रहती है. और modality हमें करना चाहिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार काम करना चाहिए. हमारी सरकार कहती है उसके अनुसार काम करेंगे तो सबका बच्चा हो सकता है. बट modality, बट हमको जंप नहीं, हमें आज ही मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच जाना है. सो आई थिंक वी शुड गिव एवरीवन, हमारा एक एम होना चाहिए कि हम सबको अपना बच्चा दे सके. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, should not true. donor oocytes and donor eggs. And whenever uterus is defective, some problem or not there, then surrogacy is not outcome. तो बेबी तो हो जाएगा, बट काम करने का तरीका और इलाज का तरीका थोड़ा बदल जाएगा. Yes, thank you sir for this insight. Sir, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है इस बारे में कि ओवरऑल जो हेल्थ होती है फीमेल की या मेल की, does that affect fertility? We talked about it and we would say कि yes, of course it does. कई बार पेशेंट को लगता है कि वेट का क्या है,
वो तो हो जाएगा, प्रेगनेंसी कर दो पहले। मतलब दिस वी शुड टेल द व्यूअर्स, ऑल ऑफ यू, दैट यू शुड नो वेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओबेसिटी जिसके बारे में अभी हमने बात की है, लाइफस्टाइल। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? I think the biggest killer for the men is the lifestyle diseases. यस सर। Women also, not only for the men. आजकल तो ये हाल है ना कि large number of women, when I ask them, do you drink? They say we drink. Do you smoke? नहीं, हम सिगरेट नहीं पीते, हम हुक्का पीते हैं. So जमाना बदल रहा है. See, first of all, we have to see the world is changing, and we shouldn't look at कि ये हुक्का पीती है, ये सिगरेट पीती है. That's the way the world is evolving. We are becoming more Americanized and we are moving European way. यस But इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. So Yes. for any girl who smokes, मैं ड्रिंकिंग के बारे में नहीं बोलूँगा. Moderate drinking is okay. तो ये नहीं कि अच्छी बात है, but इसे it's not a good thing, but they may drink once in a while. But smoking is very harmful for our ex. Smoking is very harmful for the man, for his sperm. So smoking is big no-no. Drinking occasional once, twice a month or thrice a month or once a week, still tolerable. परंतु जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है वो आ रही है कि ड्यू टू ओवर ईटिंग, हवा खाने से तो मोटे नहीं हो जाते. मुझे काफ़ी लोग कहते हैं हम तो कुछ खाना नहीं खाते, हम तो एक रोटी खाते हैं, वो पता नहीं कि सारा वेट ही बढ़ता रहता है. सो अंटिल यू हैव अ थिंग लाइक थायराइड प्रॉब्लम और समथिंग, आई थिंक वेट डजंट इंक्रीज हवा खाने से. वेट बढ़ेगा Yes. खाना खाने से वेट बढ़ेगा हमारा. सो हम अगर डाइटरी हैबिट्स आर द वंस व्हिच वी हैव टू कंट्रोल. सो ओबेसिटी कैन लीड टू फर्टिलिटी, infertility, subfertility. Obesity can lead to low sperm count. It can lead to male erectile dysfunction, hypertension, diabetes come along with obesity. So, सब चीजें जो मिलकर आती हैं तो फिर वो पूरा का पूरा वातावरण they'll destroy the internal environment of the couple, and that causes the problem. So I think lifestyle is very very important, and उसको हम ही modify कर सकते हैं. हमारा पड़ोसी हमारे लिए कम खाना नहीं खा सकता. हमारा पड़ोसी सुबह उठ के राम नाम नहीं कर सकता. ऐसे बोल रहा हूँ. कोई गुरबानी का पाठ करेगा, कोई जपजी का पाठ करेगा, कोई राम नाम करेगा, कोई Yes. नमाज पढ़ेगा. ये करना चाहिए. आई फील हमें सुबह उठ के अपने मन को अपने धैर्य से हमारा धैर्य बढ़ता है, हमारा पेशेंस बढ़ता है, एंड वी बिकम मोर रिलैक्स्ड. अगर हम Yes. सुबह उठ के कुछ समय अपने साथ बिताएंगे, आई थिंक वी कैन डू सम प्राणायाम, सम योगा. वी कैन कुछ हमें संकल्प लेते हैं अपने लिए अच्छा काम करने के लिए, that will help us. So Yes. lifestyle disorders are the ones which are very very bad ones. अब एक चीज देखो ना, जो चीज फ्री की है वो हम नहीं लेना चाहते. अच्छी हवा फ्री की है तो हम सांस लेते ही नहीं है. हम लोगों ने अच्छी हवा लेनी बंद कर दी है. We stop breathing actually. अच्छा खाना, कितना अच्छा वेजिटेरियन खाना आता है हमारे पास, कितने अच्छी तरह के फल फूल आते हैं. नहीं खाएंगे हम खाएंगे पिज्ज़ा, और हम ऑर्डर करेंगे मैकडी से, बर्गर किंग. वी टेक ईटिंग पिज्ज़ाज एवरी डे. सो आई थिंक वी हैव टू कंट्रोल आवर ओन लाइफ. दैट विल हेल्प अस टू हैव हेल्थियर लाइफस्टाइल, एंड दे कैन ऑल लीड टू स्टेबिलिटी. Yes. आपके पास तो केसर का ढाबा है, खाने पीने का सामान है. सर अमृतसर से ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं मुझे लगता है. फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स फ्रॉम अमृतसर एंड पंजाब, we are the foodie capital of India, I think. So for all of you to know, lifestyle and food actually matters. अभी सर ने जस्ट ये बात कही कि खाना जो आप खा रहे हैं मैटर करता है. क्या खा रहे हैं, कितना कैलोरी इनटेक है. और अगर आप कहते हैं कि आप नहीं खा रहे हैं फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, तो कोई कारण है उसका, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. थायराइड मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है, डायबिटीज हो गया, उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है. लेट्स मूव सर. लेट अस सी. पेशेंट्स को लगता है या व्यूअर्स को भी शायद लगता है कि जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है, या व्हेन यू वॉक इनटू आईवीएफ क्लिनिक और फर्टिलिटी क्लिनिक, इट इज गोइंग टू कॉस्ट अ लॉट. तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जाए नहीं. तो बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं बड़े साल वेट करते रहते हैं. उनको लगता है बहुत कॉस्टली है, उससे जाके पूछे कौन, टेस्ट ही नहीं कराते, इन्वेस्टिगेट ही नहीं कराते, जबकि बहुत मिनिमल इन्वेस्टिगेशन और कई बार मिनिमल ट्रीटमेंट्स नाल पेशेंट कंसीव कर जाते हैं. सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना है डॉक्टर नैना कि हर चीज का इलाज आईवीएफ नहीं है। Yes, sir. IVF ऐसा एक रिमोट कंट्रोल नहीं है कि उठाया और टीवी चालू कर लिया। आईवीएफ एक लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी दंपति का ट्रीटमेंट करने का। सो Yes. डोंट रिमूव दिस फीलिंग के इनफर्टिलिटी का मतलब होता है आईवीएफ। Yes, sir. सो दिस हमको इस धारणा को बदलना है। और धारणा को कौन बदलेंगे? तो मैं देखते हैं हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं बहुत देर से। तो हमारे काफी Yes. फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वी हैव गॉट रितु, अखिल, जिगर, we have got Kumari Anurag, Vanya, Arindam, Ishwar Karupa, nursing home, somebody is from there. Then we got Anuradha Su, Chika, Shri, Hasta. So, हमको we have to just understand कि फर्टिलिटी का मतलब इनफर्टिलिटी का मतलब आईवीएफ नहीं है, वो लास्ट रिजॉर्ट है। हमको Yes, sir. अगर ठीक से वर्कआउट करते हैं पेशेंट्स को, अगर उनकी ट्यूब्स खुली हैं और उनका स्पर्म काउंट ठीक है, तो हमको आईआईवी नहीं करना है। वी शुड डू टाइम इंटरकोर्स। Yes, sir. तो Yes. हर कपल में जैसे हमने बात करी कि उनका डिम कब बन रहा है, व्हेन आर दे ओव्यूलेटिंग। तो अगर नैना वी कम टू नो दैट व्हेन आर दे ओव्यूलेटिंग एंड दैट टाइम वी टेल देम टू हैव अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर 2-3 डेज, दे विल बिकम प्रेग्नेंट। Yes, sir. सो Yes, पहले sir. टाइम इंटरकोर्स, उसके बाद आईयूआई 2 या 3 साइकिल, फिर आईवीएफ। सो मेरे Yes, विचार sir. से 70% ऑफ पीपल दे बिकम प्रेग्नेंट बाय दिस ओनली। IVF we go for the people who have blocked tubes या स्पर्म Yes, काउंट sir. बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। ये Yes, जिनको sir. पीजीडी कुछ कराना होता है, जिनके एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, दे वांट टू डू पीजीटी, उनके अंदर आईवीएफ होता है। अदरवाइज जिनका डोनर एग होता है उस Yes, केस sir. में होता है। सो आई थिंक एंड सेकेंडली वी शुड डू, हमें इलाज सस्ता करना चाहिए। Yes, अगर हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए 5,000 के, तो हम 20,000 के इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? दैट वी हैव टू कट डाउन ऑन इन्वेस्टिगेशन फॉर अस। Yes, sir. True, sir. True. Thirdly, we should all get down together and use Indian products. मैं जैसे हमारा अभी 76th रिपब्लिक डे है Yes. 2 दिन के बाद में। सो जो थीम दिया है, इसका दिया है आई थिंक स्वर्णिम भारत, Yes, sir. गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इस गोल्डन एज ऑफ इंडिया, सो गोल्डन एज तभी होगी जब हम अपने देश को आत्मनिर्भर करेंगे। जो चीज Yes. इंडिया में मिलती है 10 रुपए की, उसको हम 100 रुपए की चीज क्यों खरीदते हैं? Yes. कितना टैरिफ डिस्प्यूट चल रहा है ना। अब जब से नए प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के, तो टैरिफ की बात ही चल रही है। Yes. तो जो चीज बनती है यूएस में 100 रुपए की, हमारी कंट्री में आती है 200 रुपए की चीज आती है वो चीज। तो वी आर पेइंग थिंग्स फॉर इम्पोर्टेड स्टफ, डोंट बाय इम्पोर्टेड स्टफ। हमारा देश के अंदर बहुत बेहतरीन आईवीएफ का सामान बनता है। वी मेक वेरी इंडियन। we got very good stuff which is made in India. Indian made hormones. So they're a very good option for all of us. I think that is the point of IVF. So अगर हम इंडियन यूज करें तो कम से कम तो हम तकरीबन There must be some problem with the connection. तो हम 40 से 50,000 रुपए तक का हम आईवीएफ को ट्रीटमेंट को चीप कर सकते हैं इन केस वी यूज इंडियन प्रोडक्ट्स। दैट्स द वे आई लुक एट इट। यस, so I think Nana's site, she's got some internet problem, so I'll just sum it up now. And it's really very good to see so many people on the screen. So very good evening, good afternoon to all of you. I can see Rupashri Purushottam, I can see Hasna Akhi, Tarushri, Chika, Anuradha, Shivakhil, Arindam, Vanya, Anurag, Jigar, Ritu. So lovely talking to all of you. And anything you want to ask me, you can always ask me. But really nice to interact with all of you. जो हमने बातें सीखी हैं वो सिंपल बातें, that we should keep our life as simple as possible.
we should do, as far as possible, we should do the right treatment. और right treatment क्या है? Right treatment है, we should do a cheap treatment, logical treatment, and use made in India products. If we use made in India products, then we always have a better outcome for our patients also. So with this, I would like to say goodbye to all of you. It was wonderful being with you again today, and we're going to meet again after 15 days with a new topic, which you'll love to listen to, I'm sure. And till the time we meet again, I'll say goodbye. We're always there with all of you in case you want to ever contact us anytime. You have our telephone numbers. We got a very active social media channels. We are available all the time on our YouTube. So feel free to contact us anytime, and we'd love to talk to you and help you. लाइफ को सिंपल रखें, लाइफ को सरल रखें, और अपने ऊपर भरोसा रखें, एंड टेक केयर ऑफ योर पेशेंट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आल्सो. मैं सबको बोलता हूँ कि हम सबका ध्यान रखते हैं, हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए. So with this, thank you very much. Jai Hind, Namaste, and I wish all of you a very happy upcoming Republic Day, a 76th Republic Day, and the theme of that is Golden Bharat. So सबको प्रण लेना चाहिए that we'll make our India स्वर्णिम, will bring golden age to our country, and और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है इस सोसाइटी को इम्प्रूव करने का, बेहतरीन करने का. एंड goodbye to all of you, and take care of your families also. Dhanyavad, Jai Hind, thank you. Nana, you are back. You can say goodbye to all. You're muted. You are Some muted. network issue must have happened. I could not join back. No problem. No problem. Thank you so much. Thank you so much for this insight, sir. So goodbye to all of you. तो तुम भी मजे करो. Nana, enjoy Amritsar, and take care of you. Okay. Thank you, sir. Jai Hind. Thank you.